اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العلي العظيم۔ آپ نے سورہ الاحزاب کے چوتھے رکوع کی تلاوت ملاحظہ فرمائی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے یہ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ ہم تمہیں کچھ دے دلا دیں اور تم کو خوبصورت طریقے سے چھوڑ دیں، اور اگر تم لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اچھا کرنے والوں کے لیے، ایسی محسنات کے لیے، تم میں سے ایسی محسنات کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی عورتوں، تم میں سے کوئی بھی کسی واضح فحش کا ارتکاب کرے گی تو اس کے لیے عذاب کو دوچند کر دیا جائے گا، اور ایسا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر آسان ہوگا۔ اور تم میں سے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی عبادت گزار اور اطاعت گزار ہوگی اور نیک کام کرے گی، ہم اس کے اجر کو دوگنا کر دیں گے اور ہم اس کے لیے رزق کریم تیار کریں گے۔ اے نبی کی عورتوں، تم لوگ اور دوسری عورتوں میں سے کسی ایک عورت کی طرح سے نہیں ہو۔ اگر تم متقی و پرہیزگار ہو تو تم دب کر بات نہ کرو کہ وہ شخص جس کے دل میں کوئی مرض ہو وہ تمہارے تئیں حرص و طمع کرنے لگے، اور تم صاف سیدھی بات کہو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو
اور قدیم جاہلیت کی سج دھج کی طرح سج دھج اختیار نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو چاہتا یہ ہے کہ اہل بیت کہ تمہارے اندر سے وہ گندگی کو دور کر دے اور تم کو اچھی طرح پاک کر دے، اور اس کو یاد رکھو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، یعنی اللہ کی تعلیمات اور حکمت کی باتیں۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی بڑا لطیف و خبیر ہے، بڑا باریک بھی ہے، اور ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ سورہ الاحزاب کا چوتھا رکوع ہے، آپ نے اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ ابھی اس سے پہلے رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ زندگی کے آئیڈیل ہونے کی بات آئی تھی، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اسوہ ہیں تو نبی کی بیویوں کو بھی دنیا کی تمام مومنات کے لیے اسوہ ہونا چاہیے، نمونہ ہونا چاہیے۔ اس تعلق سے اس رکوع کے اندر نبی کی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو تعلیمات اور ہدایات دی گئی ہیں، اور ازواج مطہرات کے تعلق سے عام عورتوں کو بھی اور مسلم سوسائٹی کی خاص عورتوں کو بھی جو دین کے لحاظ سے، دینی تعلیمات کے لحاظ سے، دینداری کے لحاظ سے ممتاز اور نمایاں ہیں، ان کو بھی اس سیاق و سباق میں تعلیمات و ہدایات دی گئی ہیں۔ اسلام ایک نظام زندگی ہے، اور وہ ایک آئیڈیل معاشرہ کی تشکیل کا قائل اور علم بردار ہے۔ اس لحاظ سے جہاں مرد کو آئیڈیل ہونا چاہیے، مردوں کے لیے جہاں تعلیمات ہیں، وہاں وہ تعلیمات عورتوں کے لیے بھی ہیں، اور یہاں بالخصوص عورتوں کو، نبی کی بیویوں کو جو ہدایات دی گئی ہے، ان تعلیمات کے توسط سے جیسا کہ بتایا گیا کہ مسلم معاشرے کی ماؤں اور بہنوں کو، اور ان لوگوں کو بھی خاص طور سے کہ جو دین کی تعلیمات کے لحاظ سے ایک مقام اور مرتبہ، نمایاں مقام اور مرتبہ رکھتی ہیں معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر۔ فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں کو یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، تمہیں کچھ دے دلا دیں اور تم کو خوبصورت طریقے سے رخصت کر دیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات مطالبہ کر رہی تھیں، اپنی ضروریات زندگی کے سامان کا مطالبہ کر رہی تھیں، پیسوں کا مطالبہ کر رہی تھیں، اور اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی تھی،
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں 4 ازواج مطہرات تھیں، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ جب یہ مطالبہ کر رہی تھیں تو اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور جب یہ منظر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے۔ آپ نے صورتحال بتائی، اور یہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ دونوں حضرات نے اپنی اپنی بیٹیوں کو، حضرت عمر فاروق نے حضرت حفصہ کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بتاتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن بتاتے ہوئے، اور موجودہ حالات میں معاشی پریشان حالی کو بتاتے ہوئے آپ لوگوں کی توجہ مرکوز کرائی کہ قناعت کا طریقہ اختیار کرو، قناعت کی تعلیم و تلقین کی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ حکم دیا گیا تھا کہ جب یہ آپ کی یہ بیویاں مطالبہ کر رہی ہیں آپ سے، تو آپ ان سے کہیے، ان کو اختیار دیجئے فقہ کے دائرے میں یا فقہ کے پس منظر میں، فقہی احکام کے پس منظر میں تخیر کا ایک قضیہ ہے، اور یہ تخیر آپ کے لیے لازم اس لیے ہو گئی تھی، فرض اس لیے ہو گئی تھی کہ آپ کو یہ بات کہی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ اپنی بیویوں کو اختیار دیجئے کہ اگر وہ دنیا چاہتی ہیں اور دنیا کی زینت چاہتی ہیں تو اپنے آپ کو آپ سے الگ کر لیں، آپ ان کو الگ کر دیجئے لے دے کر کے، اور ان کو خوبصورت طریقے سے چھوڑ دیجئے۔ اور اگر اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہیں تو پھر یہ آپ کے ساتھ رہیں، اور یہی وہ عورتیں ہیں، یہی وہ ازواج مطہرات ہیں جو محسنات کے مقام پر فائز ہو جاتی ہیں، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کا وعدہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا، ہر ایک سے پوچھا، حضرت عائشہ سے پوچھا، حضرت حفصہ سے پوچھا، تمام ازواج مطہرات سے پوچھا، اور تمام ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا کہ ظاہر ہے ہم اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور دار آخرت کو چاہتے ہیں، ہم دار آخرت کے طلبگار ہیں۔ ظاہر ہے اللہ کو جو چاہتا ہے، اللہ سے جو محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی اس کو محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر، اللہ کے رسول کے اتباع کے بغیر اللہ سے محبت کا دعویٰ بالکل بے معنی ہوتا ہے، اور اللہ کو چاہنے والا دار آخرت کو بھی چاہتا ہے، دار آخرت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دنیا کی یہ زندگی جس میں آپ اور ہم رہتے ہیں، جس میں یہ انسان رہتا ہے، دوسری مخلوقات ہیں یہاں، اور انسان اشرف المخلوقات ہے دنیا کے اندر، اس دنیا میں انسان کو اونچا مقام دیا گیا ہے، اور ساری مخلوقات اس کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں۔ دنیا سے کنارہ کشی اسلام نہیں سکھاتا ہے، رہبانیت کا سبق نہیں دیتا ہے،
साधु नहीं बनाना चाहता है, इस्लाम किसी को जोगी नहीं बनाना चाहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक मोमिन के नज़दीक दुनिया के मुकाबले में आखरत की ज़िंदगी महबूब होती है। आखरत की ज़िंदगी ही बाकी रहने वाली है और देरपा ज़िंदगी है। यही वजह है कि फरमाया जाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। ए लोगो, जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो, और हर शख्स को इस बात के लिए फ़िक्रमंद होना चाहिए कि उसने कल की ज़िंदगी के लिए क्या कुछ भेज रखा है। लिहाजा अल्लाह से डरो, बिलाशुबा अल्लाह तुम्हारे अमाल से बाखबर है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा अक्लमंद अल-कय्यिसु मिन्ना मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत। मेरी उम्मत का अक्लमंद आदमी, ज़हीन आदमी वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए अमल करे। जाहिर है अज़वाज मुतहरात को जब ये इख्तियार दिया गया और सारी अज़वाज मुतहरात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाइजत इख्तियार करने का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने का इरादा फरमा लिया और बड़े इरादे की मजबूती के साथ जो है आपकी रफ़ाक़त का इरादा फरमा लिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये ऐलान भी होता है कि ऐसे लोग जो अल्लाह को चाहें, जो अल्लाह के रसूल को चाहें और जो दार आखिरत के तलबगार हों, ऐसे लोग मुहसिन हैं। ज़ाहिर इन अज़वाज मुतहरात ने अल्लाह की चाहत का, अल्लाह की मर्ज़ी के हुसूल का, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहने का और दार आखिरत के तलबगार होने का मुज़ाहरा किया था, सबूत दिया था। अल्लाह तबारक व तआला ने इन औरतों को, इन अज़वाज मुतहरात को मुहसिनात के लक़ब से मुलक़्क़ब किया और फरमाया कि ऐसे ही मुहसिनात के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजर अज़ीम तैयार कर रखा है। आखिरत का घर और आखिरत में जो अजर अज़ीम का जो वादा है, चाहे वो अजर अज़ीम बेहतरीन ठिकानों की शक्ल में हो, चाहे बेहतरीन खाने पीने की चीज़ों की शक्ल में हो, चाहे ऐश व इशरत और तफरीह तबाह के सामान की शक्ल में हो, इन तीनों चीज़ों के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। दुनिया में आदमी इन्हीं तीन चीज़ों को चाहता है कि उसको अच्छा खाना मिल जाए, अच्छी रहाइश मिल जाए, और अच्छा खाना और अच्छी रहाइश पर ही इक्तफा नहीं करता है, बल्कि वो ये चाहता है कि इसके साथ ही साथ तफरीह तबाह का सामान भी उसे मिले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब आखिरत की यकीन दहानी कराता है और अजर अज़ीम का जब वादा करता है, तो इस अजर अज़ीम में ये तीनों चीज़ें शामिल हैं, और वो सारी चीज़ें शामिल हैं कि जिन तक हमारा जहन नहीं पहुंचता है, उस क्वालिटी के साथ, उस दर्जे के साथ वो सारी चीज़ें शामिल हैं जिन तक हमारा जहन नहीं पहुंचता है, जिन तक हमारा ख्याल नहीं पहुंचता है। एक हदीस की रोशनी में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ आखिरत में जो नेमतें मिलेंगी वो ऐसी होंगी जिनको कभी किसी ज़ुबान ने चखा नहीं होगा, जिनको कभी किसी दिल ने महसूस नहीं किया होगा और कभी किसी निगाह ने देखा नहीं होगा। तो फरमाया कि ऐसे ही मुहसिनात के लिए, तुम में से ऐसे ही मुहसिनात के लिए अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा है, अजर अज़ीम का वादा है। फरमाया गया, ए नबी की औरतों, तुम में से कोई भी किसी वाज़ेह फहश का इर्तिकाब करेगी तो उसके लिए अज़ाब को बढ़ा दिया जाएगा, दोचंद कर दिया जाएगा, और ये अल्लाह पर बहुत आसान है। ज़ाहिर है सिर्फ नबी की औरत होना, नबी की बीवियों में शामिल हो जाना, ये कामयाबी के लिए काफ़ी नहीं है, और ये ज़मानत नहीं बन जाती, नबी की बीवियों में शिरकत कामयाबी की ज़मानत नहीं बन जाती है। ज़ाहिर है यहाँ जिस्मानी ताल्लुक़ और मादी रिश्ता या खूनी रिश्ता से ज़्यादा रूहानी रिश्ता मोतबर होता है। आप और हम देखें कि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना चचा है अबू लहब, और अबू लहब जो दार इस्लाम से खारिज ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम था उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के मंसूबों को पामाल करता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में साजिशें करता था और दूसरों को ख़रीदता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना चचा है और इसके बावजूद तब्बत यदा अबी लहब ये सूरह नाजिल हुई, सूरह अबी लहब नाजिल हुई और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरह के ज़रिए अपने चचा पर लानत बरसाई। आपको ये कहा गया कि ये सूरह पढ़िए और आपने लानत बरसाई। फिर आप ये देखिए कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम में 950 साल तबलीग की। 950 साल तबलीग के नतीजे में उनकी बीवी तक ईमान नहीं लाई और उनका बच्चा तक ईमान नहीं लाया। उनकी बीवी के बारे में दायर है वो जहन्नम के बारे की खबर दी गई कि वो जहन्नम में जाएगी। सिर्फ नबी की बीवी होने के नाते, नबी की बीवी होने की वजह से वो जन्नत की मुस्तहिक नहीं बन जाएगी। खुद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जब तूफ़ान नूह आया और तूफ़ान नूह में जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी जब तबाह बर्बाद हो रहा था तो हज़रत नूह ने यह फरमाया कि अल्लाह ताला हमारे बेटे को बचा लीजिए। फरमान सादिर होता है कि ए नूह, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये तुम्हारे अहल याल में से नहीं है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी सिर्फ इस बुनियाद पर जन्नत की मुस्तहिक नहीं होगी कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, बल्कि उसके बारे में भी सूरह तहरीम के अंदर जहन्नम की नवेद दी गई है कि उसको जहन्नम मिलेगा। यहाँ नबी की औरतों से ख़िताब किया जा रहा है कि तुम में से कोई भी किसी फहश का, वाज़ेह फहश का इर्तिकाब अगर करेगी तो उसके लिए अज़ाब दोचन कर दिया जाएगा, अज़ाब बढ़ा दिया जाएगा। इसलिए कि तुम्हारा जो मुकाम और मर्तबा है नबी की बीवियों, जो आपका मुकाम और मर्तबा है, आप जिस मुकाम और मर्तबा पर फायज़ हैं, आप ख़ातिमुल अंबिया, सरवर कौनैन, सरवर आलम और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं। जब आपका मुकाम और मर्तबा ये है तो आपकी ज़िम्मेदारियां भी बढ़ी हुई हैं और अगर फहश का इर्तिकाब करेंगी तो इस लिहाज से आपका अज़ाब भी बढ़ेगा। आपकी ज़िम्मेदारियां बढ़ी हुई हैं, फहश का इर्तिकाब अगर आपसे होता है तो आपका अज़ाब भी दोचन हो जाएगा। इसलिए कि हर अच्छे लोग या जो माशरे में सिलेक्टेड लोग होते हैं, मुंतखब लोग होते हैं, जो चीदा लोग होते हैं, उनके फॉलोवर्स होते हैं और तो ज़ाहिर है उनके फॉलोवर्स जो उनको देख के जो गलत काम करते हैं उनका भी अज़ाब या उनका भी गुनाह जो है उन लोगों पर जो है आ जाता है कि जिनको देख करके लोग गुनाह का इर्तिकाब करते हैं। इसलिए नबी की बीवियों को ये होशियार किया जा रहा है, नबी की बीवियों से ये ख़िताब किया जा रहा है और इस तवस्सुत से मुस्लिम सोसाइटी की ख़ास औरतों को भी ख़िताब है कि जो ख़ास मुकाम रखती हैं सोसाइटी में, माशरे में, अगर किसी फहश का इर्तिकाब करेंगी तो ज़ाहिर है उसी लिहाज से जो मुकाम और मर्तबा है उसी लिहाज से उनकी सज़ा को बढ़ाया भी जाएगा। और ये अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि अल्लाह ताला अपने मंसूबे को जामे अमल पहनाए। इसी तरह ये फरमाया जा रहा है कि वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही व तामल सालिहन नूतिहा अजरहा मर्रतैन, कि तुम में से कोई अगर अल्लाह की इबादत गुजार होगी और उसके रसूल के लिए और जो नेक अमल करेगी उसका सवाब जो है हम दोचन कर देंगे, उसका सवाब, उसका अज्र जो है हम बढ़ा देंगे। जैसा कि अभी अर्ज़ किया गया कि जो अहम होता है, जो माशरे में चीदा ग्रोह होता है, चीदा अफराद होते हैं, उसके फॉलोवर्स भी होते हैं, तो अच्छा करने वाले की जो फॉलोवर्स होंगे, जो जिसको देख कर के जिन लोगों ने फॉलो किया होगा, उनका सवाब भी उनके सवाब में कमी किए बगैर उस शख्स को दिया जाएगा कि जिसको देख करके ये अमल इख्तियार किया गया। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि तुम दुनिया के लिए, दुनिया के इंसान औरतों के लिए, मोमिनात के लिए तुम आइडियल हो और आइडियल होने का तकाज़ा ये है कि तुम जो है तुम अपना मुकाम और मर्तबा पहचानते हुए तुम इबादत गुजार बनी रहो और इबादत गुजार अगर रहोगी, खालिस तरीक़े से अल्लाह की और अल्लाह के रसूल के तहत गुजार रहोगी, तो तुम्हारे लिए जन्नत में रिज़्क़ करीम होगा, तुम्हारा सवाब जो है दोचन कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। फरमाया जा रहा है कि ए नबी की औरतों, तुम किसी आम औरत की तरह से नहीं हो, तुम लोगों का मुकाम जो है बहुत बढ़ा हुआ है,
तुम खातिमुल अंबिया की बीवियां हो, तुम शफीउल मुज़नबीन की बीवियां हो, तुम जो है सरवर कौनैन और सरवर अंबिया सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हो, तुम्हारा मुकाम और मर्तबा बहुत बढ़ा हुआ है, तुम आम औरतों की तरह से नहीं हो, और अगर आम औरतों की तरह से नहीं हो तो तुम्हारी पकड़ भी है, तुम्हारी पकड़ भी होगी, तुम्हारा मुकाम और मर्तबा जिस तरह से है तुम्हारी गलतियों की पकड़ भी होगी। तुम से तकाजा ये होता है कि तुम तकवा की ज़िंदगी इख्तियार करो, और यकीनन अगर तुम तकवा की रविश पर हो तो तकवा का एक मुजाहरा ये है कि तुम सोसाइटी में और माशरे में गैर महरम के सामने दब कर बात न करो। दब कर बात न करने का मतलब यह है कि लगी लिपटी बात न करो, तुम्हारी बातों में दानिस्ता तौर पर चाशनी न हो, तुम्हारी बातों में दानिस्ता तौर पर मिठास न हो, तुम्हारी बातों में लचक न हो कि कोई दिल का मरीज़ कि जो फसादकार होता है, जो शरंगेज़ होता है, वो शरंगेज़ ये न समझे कि जाहिर है इस औरत से कोई और तवक्को की जा सकती है। अगरचे नबी की बीवियों को ये ख़िताब किया गया है, और जाहिर है नबी की बीवियाँ कोई फहश का इर्तिकाब नहीं कर रही थीं, लेकिन नबी की बीवियों के तवस्सुत से आम मुस्लिमीन, आम मुसलमान औरतों को, और बिलखुसूस उन ख़ास औरतों को भी ख़िताब किया गया है, उन ख़ास औरतों को मलूज़ रखा गया है कि जो सोसाइटी में और माशरे में दीन के लिहाज से, इल्म के लिहाज से मुकाम और मर्तबा रखते हैं। और उनसे ये कहा जा रहा है कि कोई लगी लिपटी बात नहीं होनी चाहिए, कोई दानिस्ता तौर पर बातों में और गुफ्तगू में मिठास नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि जिससे मुखातब ये समझे कि कुछ दावत मुलाहजा दिया जा रहा हो या उसके दिल में कोई तमा ना पैदा हो। और फरमाया गया कि तुम सीधी सच्ची बात कहो, बिल्कुल सीधी सच्ची बात कहना, लगी लपटी बात नहीं कहनी चाहिए। एक आम अंदाज जो बात करने का होता है वो बात उस तरह बात होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि यह बात कही जा रही है कि अगर तुम दब करके बात न करो, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि बदतमीज़ी करने के लिए बात कही जा रही है कि तमीज़ से तुम पेश नहीं आओ, बल्कि बहुत सीधी सच्ची बात करो, जो एक आम अंदाज है, जो एक मारूफ अंदाज है, जो एक नोन अंदाज है बात करने का, उस तौर पर बात करो, उस तरीके से बात करो कि दिल का मरीज़ जो है, जो शरंगेज़ है, जो बदकार है, तुम्हारी तरफ मायल ना हो। फिर ये फरमाया गया कि अपने घरों में सुकून के साथ रहो, ठहरी रहो। औरत का घर, औरत का ख़ास मैदान कार जो है घर हुआ करता है, और मर्द का जो मैदान कार है घर के बाहर की ज़िंदगी है। और ये फरमाया जा रहा है कि कदीम जाहिलियत की सजधज की तरह सजधज इख्तियार न करो। जाहिर है अपने बदन के हुस्न के ज़रिए, अपने लिबास के ज़रिए, अपने ज़ेवरात के ज़रिए, अपने चाल ढाल के ज़रिए तुम जो है तुम ऐसी सजधज इख्तियार न करो, ऐसी ज़ीनत इख्तियार न करो कि जिसकी बुनियाद पर जो है दूसरे लोग जो है तुम्हारी तरफ जो है मायल हों, और दिल का मरीज़ जो है, जो दिल का मरीज़ है, जिसके अंदर ख़राबी है, जो शरंगेज़ है, वो बिला वजह ऐसे मौके से फ़ायदा उठाए। नमाज कायम करो, ज़कात दो, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। अल्लाह ताला चाहता है कि अहल बैत कि तुम्हारे अंदर से रिस्क को, गंदगी को ख़त्म कर दे और तुमको खूब अच्छी तरह से पाक कर दे। तुम्हारे घरों में जो हिकमत की बातें होती हैं, जो अल्लाह के हकाम बताए जाते हैं, उन हकाम को याद रखो, याद करो कि तुम उन हकाम को याद करो, हिकमत की उन बातों को याद करो, और याद करके अपना मुकाम और मर्तबा समझने की कोशिश करो, और ताकि इस